بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے ملتان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا ہے۔ چیف سیکرٹری نے برانڈ روڈ، گلگشت اور ملتان ایونیو پر جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور منصوبوں کی رفتار، معیار اور شفافیت پر زور دیا ہے۔ بعد ازاں چیف سیکرٹری نے قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں ورلڈ سٹی پروجیکٹ کے تحت جاری کاموں کی تفصیلی انسپیکشن کی ہے، جہاں تاریخی مقام دم دما کی اپ گریڈیشن اور فصیل کی اصل شناخت بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر نے چیف سیکرٹری کو ترقیاتی اسکیموں پر تفصیلی بریفنگ دی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملتان ایونیو منصوبہ شہر کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ کرے گا اور شہریوں کے لیے جدید تجارتی مرکز ثابت ہوگا۔ بریفنگ میں آگاہ کیا گیا ہے کہ ورلڈ سٹی پروجیکٹ کے تحت قاسم باغ فوڈ اسٹریٹ کی تزئین و آرائش، جدید میوزیم اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے عالمی معیار کے منصوبے شامل ہیں، جن کی تکمیل سے ملتان کی تاریخی اہمیت عالمی سطح پر اجاگر ہوگی اور سیاحتی سرگرمیوں کے ساتھ مقامی معیشت کو بھی فروغ ملے گا۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب اور آر پی او ملتان بھی چیف سیکرٹری کے ہمراہ موجود تھے۔ پاکستان سپر لیگ کی 7ویں ٹیم حیدرآباد کی آئندہ سیزن میں شمولیت پر حیدرآباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ چینل 5 نے پی ایس ایل میں حیدرآباد ٹیم کی شمولیت کے لیے مسلسل آواز اٹھائی، جس پر وہ چینل 5 کے شکر گزار ہیں۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ 5 نیوز جبران خان کی اس رپورٹ میں۔ بالکل، کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور اور ملتان کے بعد اب حیدرآباد کی ٹیم بھی پی ایس ایل کے اس ایڈیشن کا حصہ ہوگی۔ حیدرآباد کے نیا اسٹیڈیم میں اس وقت کاشف شورو میئر حیدرآباد موجود ہیں، جنہوں نے پی سی بی کو باقاعدہ دعوت دی ہے کہ وہ پی ایس ایل کے میچز جو ہے حیدرآباد کے نیا اسٹیڈیم میں کرا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میئر حیدرآباد کاشف شورو، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ سر، حیدرآباد کی شمولیت پی ایس ایل میں تو ایک اچھی بات، خوش آئندہ بات ہوئی ہے حیدرآباد کے لیے کہ حیدرآباد کے نام سے ایک ٹیم شامل ہوئی ہے پی ایس ایل میں۔ انشاءاللہ حیدرآباد میں جب وہ آئیں گے، یہ نیا اسٹیڈیم پاکستان ٹیم کے لیے ایک لکی گراؤنڈ رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے وہ حیدرآباد کے نام سے جو ٹیم منسوب ہو کے آئی ہے اس کے لیے بھی یہ لکی گراؤنڈ رہے گا۔ تو میری پی ایس ایل والوں سے بھی رابطہ ہے، نیاز میچ کے حوالے سے، نیاز اسٹیڈیم کے حوالے سے، اور پی سی بی والوں سے بھی میرا رابطہ ہے کہ نیاز اسٹیڈیم میں کہ آئیں اور وہ یہاں پہ میچز کروائیں، تاکہ حیدرآباد کے لوگوں کے لیے ایک اچھی تفریح مہیا ہو سکے، اور ہمارے حیدرآباد کے کھلاڑیوں کو اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر پرفارمز کرتے ہوئے حیدرآباد کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید اچھائی کی۔ جی بالکل، آپ نے میئر حیدرآباد کاشف علی شروع کی بات سنی ہوگی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے پی سی بی انتظامیہ کو یہ باقاعدہ دعوت دی ہے کہ وہ پی ایس ایل کا جو ایڈیشن کے میچز ہیں وہ یہاں پر کروائیں۔ حیدرآباد کی ٹیم بھی جو ہے پی ایس ایل کے اس ایڈیشن میں شامل ہے، اور حیدرآباد کے شہریوں کی یہی خواہش ہے کہ نیا اسٹیڈیم میں بھی جو ہے پی ایس ایل کے میچز کا جو ہے انعقاد کیا جائے۔ جی، تفصیلات کے لیے شکریہ۔ رخ کریں گے بیرپور خاص کا، جہاں پر ضلع کے درجنوں ریٹائرڈ اساتذہ اور سرکاری ملازمین نے پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین نے ریلی بھی نکالی ہے اور اپنے مطالبات کی منظوری کا مطالبہ کیا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کا کہنا تھا کہ پنجاب اور بلوچستان میں سرکاری ملازمین کو گروپ انشورنس اور فنڈ جیسی تمام مراعات دی جاتی ہیں، جبکہ سندھ حکومت یہ حقوق فراہم نہیں کر رہی، جو کہ ان کے قانونی حق ہے۔ مظاہرین شدید نعرے بازی کرتے رہے، ان کے مطالبات پر توجہ دی جائے۔ رخ کریں گے لاہور کا اور بات کریں گے کہ ڈی ایس ریلوے لاہور انعام اللہ نے ٹرینی اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر سے ملاقات کی، جس میں سول انجینئرنگ شعبے کی اہمیت، اس کے اسکوپ اور مستقبل کے چیلنجز پر جامع گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں 22 ٹرینی اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئرز نے لاہور ڈویژن کا مطالعاتی دورہ بھی کیا، جبکہ ڈویژنل ایگزیکٹو انجینئرز عبدالرحمان اور غلام مرتضیٰ بھی اجلاس میں شریک تھے۔ اس موقع پر ٹرینی افسران نے ڈی ایس ریلوے لاہور کو اپنی متعلقہ انجینئرنگ فیلڈ میں مہارتوں اور تجربات سے آگاہ کیا۔ ڈی ایس ریلوے لاہور نے ٹرینی انجینئرز کو لاہور ڈویژن میں جاری سول انجینئرنگ منصوبوں، ٹریک مینٹیننس، لیول کراسنگز، ریلوے پلوں اور دیگر انجینئرنگ ورک کے ساتھ ساتھ سول انجینئرنگ انفراسٹرکچر کا تفصیلی اوور ویو بھی دیا۔ ملاقات کے اختتام پر ٹرینی انجینئرز نے قیمتی آراء اور حوصلہ افزائی پر ڈی ایس ریلوے لاہور کا شکریہ ادا کیا۔ جڑاوالا کے نواحی گاؤں خانوالا کے ایک ہی خاندان کے 14 افراد
सरगोदा के करीब ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया जब मजदा ट्रक बेकाबू होकर नहर में जा गिरा। इत्तलात के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में मर्द, खवातीन और कमसिन बच्चे शामिल हैं, जबकि मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। मुतासरा खानदान रावलपिंडी से जड़ावाला अपने रिश्तेदार की वफात के बाद वापस आ रहा था कि शदीद धुंध के बायस ड्राइवर को रास्ता नजर न आया और गाड़ी पुल से नीचे नहर में जा गिरी। रेस्क्यू इदारों और मकामी अफराद ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाशों और जख्मियों को नहर से निकाला। हुकाम ने कहा है कि हादसे की तहकीकात जारी है और मुतासरा खानदान के लिए इमदादी इक़दामात भी किए जा रहे हैं। कश्मीर की हुदूद RD82 के करीब बदनाम जमाना डकैत माशूक मिजारी और उसके साथियों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड रेड ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई की क़यादत ASP कश्मीर मोहम्मद नौमान ने की। ऑपरेशन में जिला भर की पुलिस शामिल थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जराइम पेशा अनासर का घेराव किया और 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने मुल्जिमान के घरों और खुफिया ठिकानों का मुहासरा करते हुए उन तक रसाई हासिल की और ठिकानों को मिसमार कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये अनासर मोटरसाइकिल छीनने, दुकानों में डकैती, इक़दाम कत्ल, अगवा और दीगर संगीन जराइम में मुलविस थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन तहाल जारी है और मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार नूर मुस्तफ़ा लकारी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पोलियो एरेडिकेशन कमेटी का इजलास कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफिस में मुनक्किद हुआ है। इजलास में फरवरी 2026 में शुरू होने वाली कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम की तैयारियों, सिक्योरिटी इंतजाम, टीमों की तश्कील, लॉजिस्टिक सपोर्ट और माइक्रो प्लानिंग का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में जिले इंतजामिया, महकमा सेहत, तालीम, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान के अलावा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो का खात्मा हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ये खतरनाक मर्ज है जिससे बचाव के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान तमाम महकमे बाहमी ताउन से माइक्रो प्लान के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा मकसद ये है कि जिला टंडोला यार का कोई भी बच्चा पोलियो के खतरों से महरूम ना रहे। डिप्टी कमिश्नर ने फील्ड अफसरान को हिदायत की कि पोलियो टीमों की मौसर निगरानी को यकीनी बनाया जाए और फिक्स्ड ट्रांजिट पॉइंट्स पर मुकम्मल कवरेज हासिल की जाए ताकि जिले भर में पोलियो मुहिम को कामयाब बनाया जा सके। जिला कश्मीर पुलिस ने पेशेवराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लापता गुलाम मुर्तजा गोलू के अगवा और कत्ल का केस ट्रेस कर लिया। इस अंधोनाक वाक़े में मुलविस सुसर समेत 3 मरकजी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। जराइम पेशा नासिर के लिए जिला कश्मीर में कोई रियायत नहीं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद घांगरू की हिदायत पर इंचार्ज C सेक्शन कंदकोट अली नवाज सब्जोई और तफ्तीशी टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और खुफिया मालूमात की बुनियाद पर तहकीकात की, जिसके दौरान इंकशाफ हुआ कि वाक़या अगवा नहीं बल्कि एक मनसूबाबंद कत्ल था। तफ्तीश में यह भी मालूम हुआ कि मकतूल को उसके सुसर बशीर अहमद ने अपने 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर कत्ल किया और लाश दरियाई गुड्डू में फेंक दी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लाश बरामद कर ली। रुख करेंगे जाम शुरू का, जहां पर सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही कोटरी समेत दीगर इलाकों में गैस की किल्लत से शहरी परेशान हो गए। गैस की अदम फराहमी के सबब कोयला और लकड़ियों की फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। शहरी गैस हुक्काम के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। जाम शुरू से अब्दुल करीम बरूही की रिपोर्ट देखेंगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही कोटरी और दीगर इलाकों में गैस का बहरान सर उठाने लगा है। गैस लोड शेडिंग, लो प्रेशर और ज़्यादा बिल से शहरी तंग आ चुके हैं। मीटर लगे हुए हैं, बिल 1000 रुपए के आते हैं मगर गैस नहीं आती। गैस की आदम फराहमी से लकड़ी और कोयलों की फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। शहरी मजबूर कोयलों और लकड़ी जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं, जबकि खवातीन को खाना बनाने में सख्त मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब गैस की किल्लत और लोड शेडिंग पर जोन मैनेजर अयाज जगानी का कहना है, सर्दी के मौसम में गैस की किल्लत दूर करने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल करीम ब्रूई, 5 न्यूज़, जाम शुरू। आगे बढ़े और बात करें कि चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड डॉक्टर वासिफ मेमन ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां चेयरमैन PRA मुअज़्ज़म इकबाल सुप्रा ने उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान चेयरमैन PRA ने महकमाना उमूर, इन्फोर्समेंट अफसरान की कारकर्दगी और रवा माली साल में इदारा जाती इस्लाहात और महसूलात की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी।
दोनों इदारों के सरबराहान के दरमियान सर्विसेज सेल्स टैक्स के नफाज, इदारा जाती इस्लाहात, डेटा शेयरिंग और इजाफे और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए महसूलात में बेहतरी लाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बैनुल-सूबाई हम आहंगी को मजबूत बनाकर टैक्स नेट को वसअत देने और कारोबारी बरादरी को सहूलत फराहम करने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक भी किया गया। चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने रवा माली साल में इस्लाहात और महसूलात के रिकॉर्ड पर चेयरमैन PRA की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क्लीन लाहौर मिशन पर अमल दरामद जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने तहसील अल्लामा इकबाल का दौरा किया ताकि म्यूनसिपल सर्विसेज का जायजा लिया जा सके। डिप्टी कमिश्नर के हमरा COMCL असिस्टेंट कमिश्नर अल्लामा इकबाल वासा और LWMC के हुकाम भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने G1 मार्केट, जोहर टाउन और समसानी गाँव में सफाई, पेचवर्क और सीवरेज के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने म्यूनसिपल सर्विसेज और फील्ड सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। वासा को तमाम मैन होल कवर्स की इंस्पेक्शन जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया और शहर में सफाई के इंतजामात में बेहतरी लाने के लिए LWMC को फाल रहने की हिदायत की है। शहर की खूबसूरती के लिए गैर जरूरी बैनर्स और पोस्टर्स फौरी हटाने, रोड पेचवर्क और मैन होल कवर्स की तनसीब मुकम्मल करने के भी इकदामात किए जाएंगे। आगे बढ़े हम ये बात करेंगे। हारूनाबाद थाना सिटी पुलिस ने पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पतंग फरोश को गिरफ्तार कर लिया और पतंगें, डोर और पतंग बनाने वाला कागज बरामद करके कब्जे में ले लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पतंग फरोख्त करने वालों और पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अब आपको लिए चलेंगे सेवन शरीफ, जहां पर हजरत लाल शहबाज कलंदर के नाम से मंसूब लाल बाग में बैठने की कोई जगह ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि बैठने के लिए कुर्सियां फराहम की जाएं और बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगाए जाएं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सेवन शरीफ से वजीर अहमद सोलंकी से, जो कि पार्क में ही मौजूद हैं। वजीर अहमद, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेवन शरीफ लालबाग के मकाम पर। तो यहाँ पे जो हज़रत लाल शहबाज कलंदर के नाम से ये पार्क का नाम मंसूब है। जो भी ज़ायरीन यहाँ पे हज़रत लाल शहबाज कलंदर पे आते हैं वो यहाँ भी घूमने फिरने के लिए आते हैं। आइए हमारे साथ एक मुसाफिर ज़ायरीन मौजूद है, मज़ीद उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं चैनल 5 का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरा मौक़िफ़ जानना चाहा। यहाँ जो है आकर ज़ायरीन को दिली सुकून महसूस होता है। बाकी यहाँ जो है सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, लेकिन और कामों की भी ज़रूरत है। जिस तरह बच्चों के लिए अगर झूले वगैरह लगाए जाएँ, बड़ों के लिए वज़ूखाने और आराम के लिए अगर होटल बनाए जाएँ तो और बेहतर रहेगा। बाकी सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं जो है साईं मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ जो है बहुत सी सहूलियात पैदा की है लोगों के लिए। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जी बिल्कुल, मज़ीद आपने बातें सुनी। यहाँ पे जो ज़ायरीन आए हैं तो उनके मौक़िफ़ सुना। और ये पार्क कदीमी पार्क है और यहाँ पे जो है दरख्त और फूलों के बागात सरसब्ज़ शादाब यहाँ पार्क है ये। और यहाँ पे बैठने के लिए ज़ायरीन के लिए कुर्सियाँ और बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले वगैरह नहीं है। यहाँ पे मुख्तलिफ पूरे मुल्क से ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। तो सेवन शरीफ के नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे भी यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया वजीर अहमद। बात करेंगे शेखुपुरा में, जहां शेखुपुरा में वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वजीर लेबर इंसानी वसाइल मोहम्मद मंशा भट्ट ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर मेंबर सूबाई असम्बली पीर अशरफ रसूल, DG लेबर सैयदा कुलसुम, डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त और दीगर जिला अफसरान के साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मौजूद थे। सूबाई वजीर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलियात, स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात के स्टॉक और दीगर उमूर का जायजा लिया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी और मेडिकल एडवाइजर ने सूबाई वजीर को तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने अस्पताल में सफाई सुथराई का भी जायजा लिया और मजीद बेहतरी के लिए हिदायत जारी की। उन्होंने ऐलान किया कि सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शेखुपुरा को 50 इजाफी बेड फराहम किए जाएंगे। नए ब्लॉक की तामीर भी होगी। जदीद मशीनरी और अमले में इजाफा किया जाएगा ताकि अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। मजीद ये भी कहा गया कि डॉक्टर्स को मरीजों की खुशदिली से देखभाल के लिए बेहतर सहूलियात भी मुहैया की जाएं।
मीरपुर खास और गिरदोनवा में शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मीरपुर खास समेत झड्डो, कोट, गुलाम मोहम्मद, शुजाबाद, सिंधड़ी और दीगर इलाकों में धुंध कई रोज से बरकरार है, जिसकी वजह से हद निगाह तकरीबन सिफर के बराबर है। शदीद धुंध के सबब मामूलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी दौरान सर्दी और धुंध के असरात की वजह से बिजली की तरसील में भी कई घंटों के ब्रेक डाउन की इत्तलात मौसूल हुई हैं। पंजाब भर की तरह कमीज शरीफ में भी जमात इस्लामी की जानिब से अवामी रेफरेंडम कैंप लगाया गया, जिसमें बल्दियाती निज़ाम, शफाफ इंतखाबात और आइनी तकाज़ों के हवाले से अवाम से राय ली जा रही है। इस रेफरेंडम की तफसीलात और अवामी रद्द-ए-अमल के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे 5 न्यूज़ मलिक अबरार खोकर। जी अबरार। सदर बाजार में जमात इस्लामी का अवामी रेफरेंडम कैंप लगाया गया है, जिसमें जमात इस्लामी का कहना था कि ये कानून काला कानून है, आज़ाद बल्दियाती इंतखाबात हार्स ट्रेडिंग का जरिया बनेंगे। अवाम का मुतालबा है कि बल्दियाती इलेक्शन पार्टी बेस पे हो, माली और इंतजामी मुकम्मल इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को मिलने चाहिए। इस हवाले से कमीर की कसीर अवाम ने राय की शक्ल में वोट कास्ट किए। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है अमीर जमात इस्लामी कमीर वासर जी, में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफ़िज़ नईमुर-रहमान की कॉल पर आज पूरे पंजाब की तरह कमीर में भी हमने अवामी रेफरेंडम का इनेकाद किया, जिसमें पंजाब का फैसला बल्दियाती काला कानून नामंजूर। कमीर की आवाम ने भी अपने राय का इजहार किया। इस रेफरेंडम का मकसद ये है कि हुकूमत जो बल्दियाती इंतखाबात करवा रही है वो गैर जमाती करवा रही है। हमारा मुतालबा है कि जमाती बुनियाद पर होने चाहिए इलेक्शन, और यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो इंतखाब है वो आवाम के डायरेक्ट वोटों के जरिए होना चाहिए। जी, जैसा कि आपने अमीर जमात इस्लामी कमीर शरीफ वासर रशीद की बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि वोट आवाम की राय और पार्टी बेस पर होने चाहिए। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मीरपुर माथेलो में सोना पब्लिक स्कूल और कॉलेज में ऑल मीरपुर माथेलो प्राइवेट स्कूल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज हो गया है। इफ्तिताही तकरीब में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के मेजर खुर्रम सलीम और ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सक्कर रीजन के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़िशान अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की है। सोना पब्लिक स्कूल के तलबा ने मुख्तलिफ खूबसूरत टैबलोज पेश किए। इफ्तिताही मैच सोना पब्लिक स्कूल और स्मार्ट स्कूल घोटकी की टीमों के दरमियान खेला गया। मीरपुर माथेलो प्राइवेट स्कूल्स क्रिकेट टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जो 17 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक अपने जौहर दिखाएंगी। फाइनल 30 जनवरी को खेला जाएगा और कामयाब टीमों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। प्रिंसिपल मोहम्मद वसीम ने कहा है कि इदारा तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों को भी खुसूसी अहमियत देता है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़िशान अहमद कल्होड़ो ने कहा कि खेल मुआशरे की तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं और तलबा में नज़्म व ज़ब्त, टीम वर्क, बर्दाश्त और कायदाना सलाहियतें पैदा करते हैं। खानेवाल में गंदम की कीमतों ने अवाम और काश्तकार दोनों को परेशान कर दिया। फसल के वक्त काश्तकारों से गंदम 2500 रुपए फी मन में खरीदी गई, मगर अब यही गंदम 5000 रुपए तक फरोख्त हो रही है। कीमतों के इस गैर मामूली इजाफे ने न सिर्फ अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया, बल्कि आटे की कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं। ब्यूरो चीफ चौधरी रिजवान से मजीद जानते हैं। जी रिजवान। जी शेख और दोनों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। उसके साथ साथ आटा और गंदम भी की कीमत भी ज़ोरों पर है। 2800 जो पहले ख़रीदी गई थी मन के हिसाब से, अब वो 5000 रुपये के मन के हिसाब से मिल रही है। मेरे साथ काश्तकार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, जो गंदम 2500 रुपये से 2800 रुपये मन ख़रीदी गई थी, और अब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है जी, 2500-2800 रुपये हमारे से ख़रीदी गई, हमारे खर्चे भी पूरे नहीं हुए, पानी का खर्चा भी पूरा नहीं हुआ, मज़दूरों को मजदूरी देनी होती है, हल भी चलता है, ट्वेल भी चलता है, पानी लगता है, 3 महीने में तैयार होती है फसल। और बीज जो अद्वियात वो महंगी मिल रही हैं या कंट्रोल रेट पे मिल रही हैं? जी 5000-5500 रुपये बीज मिल रहा है, हज़ारों रुपये के 20-30 हज़ार रुपये का, 85 हज़ार रुपये का एक स्प्रे होता है। क्या करें, बहुत परेशान है। हमारे तो पल्ले कुछ नहीं रहा, अल्लाह जानता है। और हुकूमत पंजाब कोई ताउन नहीं कर रही है। हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है, हमारे साथ ताउन करें। किसान, अब देखो ना, जब किसान को पल्ले कुछ नहीं होना, काश्तकारी नहीं होगी। जब काश्तकारी नहीं होगी तो फसल नहीं आएगी, फसल नहीं आएगी तो कहाँ से पूरा होगा।
जी, काश्तकारों का यही कहना है कि जो 2500 रुपये मन 2500 से 2800 रुपये मन गंदम खरीदी गई, हमारे घरों पर छापे मार मार कर गंदम को सेल करवाया गया। अब यही रिलीफ देने का वक्त है कि किसान को रिलीफ मिले। वो जो 5000 रुपये मन गंदम है वो अभी भी 2800 रुपये मन मिले या 2500 रुपये मन मिले, और अद्वियात जो हैं स्प्रे वो भी कंट्रोल रेट पर मिले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। रुख करेंगे साहिवाल का, जहां पर जालसाजी में मुलविस अनासिर अब हवालात में होंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर कानूनी यूनिट्स के खिलाफ कमर कस ली है, जहां जानवरों की चर्बी से खुला ऑयल तैयार किया जा रहा था। 1250 किलो आलाइशें तलब कर दी गई हैं। 160 लीटर खुला ऑयल और दीगर सामान जब्त कर लिया गया है, जबकि 2 अफराद मौके से गिरफ्तार भी हुए और यूनिट बंद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने भूले दी झोंक 99L पाकपतन रोड पर गैर कानूनी यूनिट पर छापा मारा। ये यूनिट जानवरों की चर्बी से खुला ऑयल तैयार करके मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई कर रहा था। फूड सेफ्टी टीम ने जानवरों की चर्बी मौके पर तलब की, जबकि खुला ऑयल और दीगर सामान जब्त कर लिया। फूड सेफ्टी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर FIR भी दर्ज कर दी गई है। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि जालसाजी के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमों की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएंगे, कसूर में महकमा वासा की नाअहली एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। कादराबाद के इलाके में सीवरेज नालों की सफाई न होने के बाद सीवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुका है। मेन कादराबाद रोड तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं तो मौजूद हूँ कसूर के इलाका कादराबाद रोड पर। अगर बात की जाए तो ये रोड जो है ये कुछ देहात नहीं है, ये कुछ शहर का जो मेन इलाका है वो कादराबाद रोड है। यही रोड जो है यहाँ से बाईपास को मिलाता है, लेकिन सीवरेज नालों की सफाई न होने की वजह से यहाँ पर पानी का खड़े होना रोजाना का मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को, यहाँ पर दुकानदारों को काफी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, ये पानी खड़ा रहता है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, ये पानी वासा की नाअहली है। पानी ये देखें आप, नालों से बफर रहा है। यहाँ पे नई सड़क बनती है, पानी इसको तोड़ देता है। तो आप बराए मेहरबानी अगर आगे विजिट करें ना, तो आगे जो सड़क है सारी टूट फूट का शिकार है। कारोबार तबाह है, वाम जो है गुजरने वाले वो परेशान है, यहाँ के शहरी। और खास तौर पे ये मक्खन चौक कादराबाद, यहाँ पे ये हाल देखें आप, पानी किस तरह बफर रहा है, सफाई नहीं हो रही नालों की, बिल्कुल भी नहीं कर रही। जी जैसे आपने अहले मक्की की बात सुनी, उनका यही कहना है कि नालों की सफाई बार बार न होने की वजह से रोजाना की बुनियाद पर जो पानी सीवरेज का पानी है वो मेन सड़क पर आ जाता है, जिसकी वजह से गुजरने वाले शहरियों को, बच्चों को और खवातीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, और नमाजी हजरात जो है वो काफी मुश्किलात का शिकार है। गुजरावाला में स्विफ्ट मेमोरियल चर्च में जिला इंतजामिया के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर डॉक्टर मजीद एबल ने अमन अमान की मिसाली सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर गुजरावाला नवीद हैदर शराजी ने कहा कि मसीही कम्युनिटी की तालीम, सेहत और समाजी शोबों में खिदमात काबिल तहसीन है। उन्होंने मजीद कहा कि मजहबी हम आहंगी और बाहमी एहतराम पुरअमन मुआशरे की बुनियाद हैं और हुकूमत पंजाब अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम कर रही है। क्रिसमस के मौके पर पुरअमन माहौल इंतजामिया और पुलिस की पेशेवराना सलाहियतों का सबूत है। डॉक्टर मजीद एबल ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के मजहबी अक़लियतों के लिए इक़दाम काबिल सताइश हैं और मजहबी त्यौहारों पर मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करना पंजाब हुकूमत की संजीदगी का मजहर है। जिला इंतजामिया और पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी पंजाब हुकूमत की मौसर पॉलिसियों का नतीजा है। तकरीब में मौलाना आसिम मखदूम, मुफ्ती आशिक हुसैन, पादरी आरिफ मसीह सराज, प्रोफेसर शहजाद लॉरेंस और मसीही कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरका ने मुआशरे में अमन, रवादारी और भाईचारे के फरोग के लिए मुश्तरका कोशिशों को अज़्म किया। और अब आपको लिए चलेंगे लियाकतपुर, जहां पर महकमा पब्लिक हेल्थ की तरफ से बिछाई जाने वाली सीवरेज लाइन शहरियों के लिए वबाले जान बन गई है। सब्जी मंडी से गुजरने वाली मेन मेंटल सड़क को तोड़कर हुकूमत को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया और दूसरी तरफ सीवरेज लाइन पर बनाए गए गटर्स को भी खुला छोड़ दिया गया है। मजीद वहां का अहवाल जानेंगे नवीद बलोच से। नवीद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इलाका मकीनों को सहूलत फराम करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट का जो है यहाँ पर आगाज़ किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे अक्का पर यहाँ पर सीवरेज लाइन डाली गई थी, ताहाल जो है इसका काम मुकम्मल नहीं किया गया। इलाका मकीन जो है इंतहाई जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और यहाँ पर आज जो इलाका मकीन है ये सब इंजीनियर के खिलाफ जो है सरापा एहतजाज है। मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद है, तफसीलात इन्हीं से जान लेते हैं। जी सर जी, आज एहतजाज क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है एहतजाज करने जी? बिल्कुल ये इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे लिए बड़ी मुश्किलात है। सब्ज़ मंडी के पास है रास्ता, अकम सब्ज़ मंडी की साइड पे यहाँ हमारी गाड़ियाँ आती हैं, रिक्शे वगैरह आते हैं, वो फंस जाते हैं। जिस वजह ठेकेदार भाग गया है उसको उसने मुकम्मल नहीं किया, ये अधूरा छोड़ के खड्डे छोड़ के चले गए, उसको वापसी मुकम्मल नहीं किया। ठीक है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, एक अधूरा छोड़ दिया उन्होंने। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, इंजीनियर की तरफ से जो है काम मुकम्मल नहीं किया। सर जी आप क्या कहना चाहते हैं इस मुताल्लिक? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठेकेदार ने जो है वो सब इंजीनियर के साथ मिली भगत करके करप्शन का एक आगाज़ कर रखा है। हमारे सब्ज़ मंडी के जो पल्लेदार हैं, इधर गाड़ियाँ उल्ट जाती हैं। एक ड्राइवर हमारा ट्रक आलू का पलटी होने की वजह से ड्राइवर ज़ख्मी हो गया था, तो पल्लेदार भी आए रोज़ मुसीबत में रहते हैं कि इधर से आलू उठा के या अपनी सब्ज़ियाँ उठा के अंदर लेके जाते हैं दूर तक, उनके लिए भी मुश्किलात है। ढक्कन खुले हैं, एक दो दफ़ा इन ढक्कन ना होने की वजह से जो ये गटर है इसमें बंदे भी गिर के ज़ख्मी हुए हैं। 2-3 दफ़ा पहले भी शिकायत की है, लेकिन जो इनका पब्लिक हेल्थ का SDO है जावेद इकबाल साहब, उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी, और जो SDO है यासर साहब उन्होंने भी नहीं सुनी। ठेकेदार को और है जो नीचे उसने अपना एक स्लीपिंग पार्टनर ठेकेदार बनाया है रहीम यार खान से, उसने नाकस मटीरियल का इस्तेमाल किया, इतना नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया है कि आप खुद देख सकते हैं। जी बिल्कुल, आज जो इलाका मकीन है ये पब्लिक हेल्थ के खिलाफ जो है सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि जो मटीरियल है वो भी नाकस डाला गया है। इलाका मकीन ने आला हकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है और मेंस हॉल का जो काम है जो सीवरेज प्रोजेक्ट है इसके काम को मुकम्मल करने का भी मुतालबा किया है। सांगड़ हुरो के रूहानी पेशवा पीर साहब इस वक्त रूहानी सफर पर हैं। तीसरे मरहले में सांगड़ के तारीखी मकाम ओट शरीफ में भी तशरीफ ला रहे हैं। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अशफाक सुलहरी। पेशवा पीर साहब वगैरह इस वक्त जो है रूहानी सफ़र के सिलसिले में दूसरे मरहले के सिलसिले में नारा के एरिया के अंदर मौजूद हैं, जबकि तीसरे मरहले में सांगड़ भी तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं। अवध के अंदर उनकी दावत है, इससे कबल जहाँ पर वो 3 बार तशरीफ़ फरमा चुके हैं और उनके वालिद जो हैं वो भी यहाँ पर कई बार रूहानी सफ़र के दौर में यहाँ पर आ चुके हैं। पीर साहब यहाँ पे आने से कबल यहाँ के जो इंतजामात है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पर जमात आएगी, उसके बैठने के लिए, खाने के लिए, ट्रैफिक और तमाम चीज़ों को प्लान जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इस वक्त जमात के जो ऑर्गेनाइजर यहाँ पे काम कर उनसे बात करते हैं कि पीर साहब के आमद से कबल यहाँ पर क्या क्या इंतजाम हो रहे हैं। सर क्या क्या इंतजाम हो रहे हैं? इंतजाम असांजो बिल्कुलु सही आहे, काठी इंतज़ाम पको थी वियो आहे ऐं उन खां पोइ नगर खानो तयारु थी वियो आहे ऐं उन खां पोइ रस्ता रोड जेके आहिनि से ओके थी विया आहिनि। इंशाअल्लाह ताला रुगो पागार जो इंतज़ारु आहे, बाक़ी ॿियो कमु सॼो मुकमल थी वियो आहे। तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए सही क्या माशाल्लाह कमु सॼो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम माशाल्लाह कमु ओके थी विया। नगर खाना वठी विया आहिनि, जमा थिया माशाल्लाह, रस्ता बस्ता सभु ओके थी विया आहिनि। मुतवक्का कितने जमात ईंदी? जमात माशाल्लाह जाम लखन खां मथे ईंदी। जी इस वक्त पीर साहब के आमद से कबल ही यहाँ पर तमाम जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। वो नगर खाने को भी यहाँ पे तैयार कर लिया गया। कहा जा रहा है कि कई लाख से ज़्यादा जहाँ पर जमात आएगी उनके बैठने के साथ साथ मेहमानों के से भी मुलाकात पीर साहब की होंगी, जिनमें सियासी भी होंगे, समाजी लोग भी होंगे, सरकारी शख्सियत से भी मुलाकात होगी। यकीनी तौर पर पीर साहब वगैरह के रूहानी सफ़र से इलाके के अंदर मोहब्बत और भाईचारे की फ़ज़ा तो कायम होगी। यकीनी तौर पर फंक्शन लीग को भी आने वाले दिनों के अंदर सियासी यहाँ पर फ़ायदा होगा और जमात मदद होगी। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। और अब रुख करेंगे गुजरात का, जहां पर चिकन की कीमतों को पड़ लग गए हैं। चंद दिन कबल 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाला चिकन अब मुख्तलिफ इलाकों में 600 से 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। शहरियों ने बताया कि दुकानदार मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटी और जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर चिकन की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। सियालकोट के इलाके डस्का रोड पर सिद्रा बद्रा स्टॉप के नजदीक खौफनाक हादसा पेश आया, जब बस और सामने से आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलर के दरमियान तसादुम हो गया। हादसे में 2 अफराद जा बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बस हारूनाबाद से सियालकोट आ रही थी, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉलर पर TR गार्ड और सरिया लोड था। शदीद धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर दोनों गाड़ियों टकरा गईं।
रेस्क्यू ने 40 साल मोहम्मद हुसैन और 27 साल नवान की लाशें बस से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल की, जबकि 45 साल खादिम को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। बस के दीगर तमाम मुसाफिर महफूज रहे। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर चब्बा ने मॉडल बाजारों का दौरा किया और जारी तामीराती और अपलिफ्टिंग मंसूबों का जायजा लिया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हन्नान खान, चीफ ऑफिसर राना महमूद और दीगर हुकाम भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी खुसूसी सफाई मुहिम का भी मुआयना किया। उनका कहना था कि बाजारों की अपलिफ्टिंग से खरीदारों और दुकानदारों को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी और बाजारों के अपग्रेडेशन मंसूबों की रफ्तार मजीद तेज और मयार यकीनी बनाया जाए। उन्होंने शहरियों से भी ताउन की अपील की और कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए कूड़ा करकट मुकर्ररा मकामात पर डालें। जलालपुर पीरवाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बुनियादी सहूलियात से महरूम, डॉक्टर्स की मुतादिद असामियाँ खाली, ट्रॉमा सेंटर ना होने के बायस हादसे में जख्मी होने वाले मरीज रुल गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फैसल अमीन गौरी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानेंगे। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में, जो इस वक्त बुनियादी सहूलियात से बिल्कुल महरूम है, जिसके अंदर ट्रामा सेंटर का ना होना, इसके अलावा जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती हैं डॉक्टर्स की, वो भी खाली पड़ी हैं। एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा दावा करती हैं कि हमने सेहत के अंदर बहुत सी तब्दीलियां लाए हैं, लेकिन वो तब्दीलियां जलालपुर पीरवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर बिल्कुल नज़र नहीं आती। अब बात करते हैं हम एक तरफ तो देखा जाए यहाँ से चंद गज के फासले के ऊपर मोटरवे M5 भी वाक़ है। वहाँ पर होने वाले हादसात, उनके मरीज़ भी जलालपुर पीरवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर लाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रामा सेंटर ना होने के बायस उन मरीज़ों को दूर दराज के इलाके जैसे बहावलपुर, जो हमसे 80 किलोमीटर जलालपुर से वाक़ है, और मुल्तान 100 किलोमीटर वाक़ है, उनको उधर रेफ़र कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत से मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। इसके अलावा जो आउटडोर में पेशेंट आते हैं, उनके लिए ना यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट मौजूद है, ना पैथोलॉजिस्ट मौजूद है, ना ही सर्जन मौजूद है। यहाँ पर शहरियों की मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि इन तमाम बुनियादी सहूलियात को फौरी तौर पर फराहम किया जाए और खाली पोस्टों को पुर किया जाए। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।